On this cloudy afternoon, we warm-heartedly welcome all the special dignitaries in front of me, respected mentors, staffs, and my dear friends, to the first ever Allied Health Seminar at iLead, a seminar on sustainable menstruation in collaboration with Anahat for Change Foundation. Today's seminar focuses on sustainable menstruation options by the women for the women. Project Unnati is an initiative of Anahat for Change Foundation at reducing marginalization of women and girls by enabling the community with knowledge, skills, and capacity development. This organization started 4 years back. Yesterday was our 4th anniversary. So it's kind of a celebration for us, which we are doing today with you all guys. My name is Namrata and we together started Anahat. So we traveled remotest villages and asking them about sanitation facilities and all. So we found out in many places they were using clothes, but the disposal was a very big issue. So when we were back from our study, we researched a lot. So we found out the main ingredient used in this disposable pads, like 95% of it is plastic, and which takes 800 years to decompose. We did some research and we found out that there are basic materials that can be used to make these pads, and the 3 materials that are there is cotton, flannel, an absorbent flannel, and a leak-proof material. So these 3 materials we sourced from different parts of India, and we started giving alternative livelihood to these women. কাজটা করেও আমার বাচ্চা কাচ্চাদের টিফিনের পয়সা, সংসারের পয়সা আমার ইনকাম হয়। এই সেলাই করতে আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি এই সেলাই করে কিছু পয়সা উপার্জন করি। We designed pads so that they would be easier for them to dry out in the sun without any shame, and hence we came out with these foldable pads. And also easy to afford. You have to build something which the society can at least buy or use. Exactly. We are a social entrepreneur, so we put out posts, we put out stories of people that we're helping or people who are working with us. So it's very important to let everybody know what you're doing. We also work in schools with menstrual hygiene awareness amongst adolescent girls. You don't need to do some kind of rocket research to get to hold of a problem and do it and then solve it. You will find it every day surrounding you. Only you have to be focused and you have to keep your eyes open. तो आप लोगों को यहाँ पे आने का जो रीज़न है, यहाँ पे जो सेमिनार में आए हैं, वो क्या काफ़ी मार्क मुझे मिलेगा, मार्क्स मिलेगा एट द एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर हम यहाँ पे कुछ जानने या सीखने आए हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों के यहाँ पे? मैम, माय नेम इज अमृत राज। मुझे ये जानना है कि जब पीरियड्स टाइम में लड़की लोग का मूड चेंज के बारे में। हाँ, काफ़ी सही सवाल है। अक्सर गर्लफ्रेंड को होता है ना ऐसा मूड स्विंग। अच्छा, नाइस। हम लोग का पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशंस क्या एकदम शुरू से शुरू हो जाते हैं या फिर कुछ टाइम है जिसमें स्टार्ट होता है? टाइम्स, ओके। सो विच टाइम आफ्टर प्यूबर्टी? ओके, तो प्यूबर्टी का एज ड्यूरेशंस क्या है? 12 to 13। ओके, वेरी गुड। बट हम लोग का आंसर थोड़ा सा चेंज है। हम लोग 10 से शुरू करते हैं। 10 से 14 इज़ अ प्यूबर्टी का जो टाइम है, ये टाइम है, ठीक है। इसमें हम लोग को बहुत सारे चेंजेस हम लोगों का बॉडीज़ में आते हैं, राइट? तो क्या क्या चेंजेस है ये तो सबको पता होगा। मैम, सो फॉर द बॉयज़, मैम when they hit their puberty, मैम उनका वो बियर्ड मुस्टैच आने लगता है and then their voice get heavier. बस हो गया। अच्छा, तालियां दे दीजिए थोड़ा। Enlargement of the scrotum and testes. ओके, वेरी गुड। और बियर्ड एंड मुस्टैच। Yes. ओके, Sudden increase in height. ओके, sudden increasing height। और Ma'am, there is increase in the height due to increase in the growth of increase in the secretion of growth hormone that is done by the pituitary gland. So, ma'am, after that there is increase in adrenaline that helps us to face emergency situations. Ma'am, there is increase in the depthness of voice due to enlargement of larynx. ओके, नाइस पॉइंट। और And ma'am, there is development in the ribcage region.
ओके, मसल्स बिल्डिंग एंड ऑल, ये सब भी होते हैं इस समय पे। ठीक है, चलिए, काफ़ी कुछ आ गया है। पिंपल्स आता है आप लोग बॉयज़ का? Yes, ma'am. So like what happens in during puberty is first thing is pimples. Second thing is like their height grows, and like let's not laugh about it, but like their mammary glands, their you know what I'm talking about. It grows in size, and like what? Yeah, let's not laugh about it. We are all grown ups now, so yeah, those things happen. The mood swings happen. So the most important thing is even in the boys and the girls, we develop pubic hair also. That's Very a part of good. the puberty. वेरी गुड। So and menstruation starts, and yeah, that much. अगर आप लोगों को तालियां देना है तो थोड़ा जोर से दीजिए, इतना कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग? जो जो आप लोग ने बताया, ये सब कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखा गया है। काफ़ी कुछ ऐड नहीं है, वो आप लोग बहुत सारे ने कवर कर दिया। हम लोग का जो ब्रेस्ट का इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, लड़के लोगों का बियर्ड एंड मुस्टैच एंड मसल्स ग्रोन अप होते हैं। यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट एंड आवर प्राइवेट एरिया, ठीक है। देन एक्ने एंड पिंपल्स जो सबको आते हैं, हम लोग लड़की लड़का हर कोई को आते हैं। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक। 10 से 14 साल तक हम लोग का जो एडोलेसेंट फेज़ है उसमें मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं। कभी कभी अभी हार्मोनल चेंजेस के दौरान 8-9 इयर्स में भी मेंस्ट्रुएशंस हो रहा है, तो इनमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके जान पहचान वाले में कोई किसी का अगर हुआ है तो इसको हम लोग अर्ली मेंस्ट्रुएशंस बोलते हैं, समय से पहले जो मेंस्ट्रुएशंस, इसको अर्ली मेंस्ट्रुएशंस बोलते हैं। ये घबराने की कोई बात नहीं है, ये अगर चाहे तो आप डॉक्टर के पास एक बार जाके चेकअप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट द हाइट यहाँ पे सबको बढ़ने लगते हैं, जो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जो भी हो, उसका हाइट भी इंक्रीज़ होते लगते हैं। तो ये था हम लोग का चेंजेस जो सर्टेन टाइम तक होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड ऑल, जो हम लोग को एक उम्र तक होते हैं, उसके बाद ये चेंजेस होना बंद हो जाते है ना। तो इसको हम लोग एडोलेसेंट फेज बोलते हैं, एडोलेसेंट टाइमिंग बोलते हैं, जी जो पर्टिकुलर एज में होते हैं, जो एक गैप मतलब ब्रिज की तरह काम करते हैं। काफ़ी हम लोग जब बड़े होते हैं और जो जब छोटे रहते हैं, तो इसके बीच वाला जो स्टेज है जिसमें हम लोग ये चेंजेस क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक। अच्छा, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे कि कैसे मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बॉयज़ लोग बैठे हैं, उन लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ लेने थे इस सेशन से। सो गर्ल्स लोगों में से हम कोई किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर किसी को प्रोसेस आता है तो आप थोड़ा उठ के एक बार शेयर कर लीजिए, मेंस्ट्रुएशंस कैसे होते हैं। आई थिंक गर्ल्स को पता होगा the process of menstruations. Yeah, and also boys, if some boys knows what happens during menstruation or what your idea is on menstruation, you can also share with us. Ma'am, I think they like bleed or something. I don't know, like, but very detailed, but I think they bleed. Okay. What happens is the progesterone hormone is actually responsible. So per month, each ovary alternately secretes an ovum. So if that, actually what happens is when fertilization occurs, the uterus needs to prepare itself. So every month what it does is like it lines itself with blood vessels, extra blood vessels and all, to provide the nutrition to the growing fetus. So if the fertilization doesn't occur, the uterine lining is actually shed in the form of blood and that mucus. Okay. So that secretion is actually termed as menstruation, and the whole cycle which involves the maturation of the eggs and ovum, so that whole cycle is called the menstrual cycle, which I think occurs for 28 days, and Very the 14th good. day the ovulation occurs. Very good. Very good. A big round of applause for him. Very good. You knew it or just Googled? No, ma'am, I knew it. That's great. Thank you. You are from hospital? No, ma'am, I am from medical laboratory Medical technology. laboratory, yeah. Okay.
मतलब हर कुछ पॉइंट कवर कर दिया ने, तो सिर्फ मैं एक बार रिपीट करूँगी, ये क्या है? What is this? Uterus? No, this is not a uterus. Ovary? Uterus and ovary is a part of it, but what is this? Vagina is also part of it. Female genital. This is called reproductive organ, reproductive system, और जो यहाँ पे प्लेस होता है, यहाँ पे एकदम नीचे. ये जितना बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा नहीं है. अब अगर हाथ को मुट्ठी करेंगे तो उसके अंदर जितना भी स्पेस होगा उतना ही छोटा सा है. ठीक है, ये यहाँ पे रहते हैं. तो काफ़ी सारे जो हरकत होते हैं पीरियड्स के दौरान, पेट में दर्द होना, पैर में दर्द होना, बैक पेन होना, इसके वजह से, क्योंकि ये ऑर्गन का प्लेसमेंट है यहाँ पे जो एब्डोमल में रहते हैं, इसलिए ऊपर कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सब नीचे होता है. पहला जो ये साइकिल है, एक कॉमन साइकिल, 28 डेज का साइकिल, ये कॉमन है. ये इन जनरल है. आपका साइकिल 30 भी हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 35 भी हो सकता है. लेकिन अगर 35 तक हो गया लेकिन आपका पीरियड्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका इस पूरा साइकिल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके दौरान आपका डेट क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है. ठीक, तो ये जो साइकिल है इसको 4 स्टेज में हम लोग डिवाइड किए हैं. पहला जो स्टेज है वो है मेंस्ट्रुएशंस. जो आपका मेंस्ट्रुएशंस चलता है वो मेंस्ट्रुएशंस, यहाँ पे 5 डेज दिखाया गया है. आपको अगर 7 डेज का है तो आप 7 डेज भी यहाँ पे हो सकता है. नेक्स्ट जो स्टेज है 6 से 10 दिन तक, ये जो स्टेज है इसमें क्या होता है, जो कौन सी एग बाहर निकलेगा ये इसका डिसीजन चलता है. और जब इसका डिसीजन चलता है तो यहाँ पे एक यूट्रस का लाइनिंग हल्का सा करके क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. आपका पीरियड्स बाहर से ख़त्म लेकिन अंदर से उसका काम करना नेक्स्ट दिन से चालू हो जाता है. नेक्स्ट जो है 11 से 18 तक के बीच एक पीरियड्स होते हैं, इसको हम लोग ओवल्यूशंस बोलते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. क्योंकि 14 से 18 तक जो डेट है ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आपका जो एग है जो मैच्योर हो गया वो बाहर निकलते हैं यहाँ से. और इस टाइम में 14 से 18 तक अगर कोई भी इंसान विदाउट एनी फैमिली प्लानिंग मेथड इंटरकोर्स किया तो वो एक टाइम के लिए भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं कोई लड़की. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और जो काफ़ी अनवांटेड प्रेगनेंसी चलते हैं तो इनकी जानकारी की कमी रहती है, इसलिए इन लोगों को अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाते हैं. तो ये 14 से 18 तक का जो बीच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक लड़की के लिए, क्योंकि इस फेज है ओवल्यूशन पीरियड, जहाँ पे एक मैच्योर्ड एग यहाँ से निकलते हैं. और नेक्स्ट 19 से 28 तक वो एग यहाँ पे रहते हैं, उसका गेस्ट के लिए वेट करते हैं. जितना एग का मूवमेंट होता है उतना यहाँ पे लाइनिंग थिकर होने लगते हैं. और अल्टीमेटली ये 28 डेज तक ये पूरा थिकर हो जाते हैं. उसका गेस्ट जब नहीं आते तब वही जो म्यूकस जो थिकर हो गया वो पीरियड्स के दौरान हम लोग का शरीर से निकल जाते हैं. इस पूरे फेज़ में बहुत सारे मिथ्स है कि अगर हम पीरियड्स के दौरान सेक्स करें या फिर पीरियड्स के बाद वाले दिन में सेक्स करें विदाउट एनी फैमिली प्लानिंग मेथड तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. ये बहुत गलत चीज़ है. ये पूरे साइकिल में किसी भी डेट एज अ सेफ डेट कोट अनकोट कहा नहीं जाता. अगर आपका प्रेग्नेंट होने का प्लान नहीं है, आप फैमिली प्लानिंग नहीं चाह रहे हो, तो आपको फैमिली प्लानिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा. वो कॉन्डम हो, पिल्स हो, एनी मेथड. बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेथड अभी निकल गए हैं. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप फैमिली प्लानिंग में इंटरेस्ट हो तो आप इसी दिन से ट्राई कर सकते हो 14 to 18. लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका साइकिल कितने दिन तक है. आपका मतलब बहुत सारे यहाँ पे हैं जो हम लोग डेट
ट्रैक करते हैं, साइकिल नहीं कैलकुलेट करते। आपका साइकिल कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आप कितने दिन के अंदर आपका पीरियड्स चलते हैं वो अगर आपको पता चल जाए तो आप ये कैलकुलेट बहुत आसानी से कर पाएंगे कि आपका ओवल्यूशन पीरियड कौन सा है। और ओवल्यूशन पीरियड अगर आप जान गए तो आपका फैमिली प्लानिंग मेथड में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चंस साइकिल से? साइकिल का नाम मैं एक बार बोल देती हूँ। पहला जो स्टेज है वो मेंस्ट्रुएशंस है, फॉलिक्यूलर, सेकंड फेज जो है फॉलिक्यूलर, थर्ड फेज है ओवल्यूशन एंड फोर्थ फेज है लूटियल फेज। शॉर्टली थोड़ा एक चीज़ें हैं जो मेंस्ट्रुएशंस के शुरू होने तक काफ़ी सबको आते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट्स में PMS बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड्स के आगे चलते हैं और पीरियड्स होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो एब्नॉर्मल पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्वेट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम लोग और जो लड़कियां लोग हैं वो फील करते हैं, बैक पेन वगैरह, पैर में दर्द। तो ये पीरियड्स के दौरान पहले हम लोग को ये सब होने से पता चल जाता है कि हम लोग का पीरियड्स होने वाले हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो फेज़ है इसमें बहुत टाइम मूड स्विंग, मूड चेंजेस आते हैं, जो काफ़ी लोगों का सवाल था। तो ये कोई एबनॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये नॉर्मल है। ये क्योंकि ये पीरियड्स का शुरू है और हार्मोनल अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके दौरान हम लोगों को ये चेंजेस फील होते हैं। और ये सबको ऐसे नहीं होते कि सब जो चेंजेस है सबको होता है, किसी किसी का कुछ कुछ पार्ट्स इसमें फील होते हैं। ठीक, अच्छा, जो नेक्स्ट है वो शायद आप लोग को यहाँ पे ब्लड दिखा रहा है। जो हम लोग का पीरियड्स चल रहा है, क्योंकि हम लोग का काफ़ी सही ब्लड निकल रहा है, तो हम लोग का आयरन का कमी है शरीर में। तो हम लोग को इस समय बहुत सारे आयरन रिच फूड है वो खाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है आयरन रिच फूड कहाँ से मिलते हैं? आयरन रिच फूड हम लोग कहाँ से मिलते हैं? सोर्स क्या है आयरन का? आप लोग क्या खाते हैं? खाने में क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आयरन नहीं खाते आप लोग? ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स लाइक पीनट्स, जो पत्ता है, जो साग है, वो आप लोग खाते हैं? तो वो जितना भी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें आपको आयरन मिलेगा। और काफ़ी कुछ चीज़ है जो जहाँ पे आप लोग आयरन मिल सकते हैं, जैसे कि डट, वो खजूर बोलते हैं ना आप लोग, उसमें आयरन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोकल चीज़ें हैं जिसमें हम लोग आयरन मिलते हैं हम लोगों को। और सिर्फ आयरन खाने से नहीं चलता है, आपको उससे क्या खाना पड़ता है? विटामिन सी खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है? विटामिन सी। आप लोग कोविड के दौरान बहुत सारे विटामिन सी इंटेक किए हैं। सो विटामिन सी कहाँ से मिलते हैं? लेमन, एनी काइंड ऑफ लेमन जो खट्टा होता है। ठीक, जो जिसको मिर्ची पसंद है वो भी मतलब खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी विटामिन सी है। तो जो खट्टा चीज़ें हैं हम सब में उसको विटामिन सी हम लोग पाते हैं। ठीक, काफ़ी लड़कियां हैं जिसमें पीरियड्स के दौरान पेन आते हैं, मतलब पेट में दर्द होते हैं। तो पेट में दर्द होने में से हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी जगह पे हम लोग बैठ जाते हैं या फिर सो के रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप हैं। अगर आपको बहुत सारे दर्द हुआ तो आप इस हॉट बैग और जो हॉट वाटर बैग है उसको आप ले सकते हैं। हम लोग पानी नहीं पीते क्योंकि हमको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो हमको इस समय बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि आपका जो ब्लड है वो आसानी से रिलीज़ हो पाए। ठीक, नेक्स्ट है आपका कुछ योगा पोजीशंस यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं। बहुत आसान है ये योगा पोजीशन। मेनली बॉडी स्ट्रेचिंग, आपको बॉडी स्ट्रेच करना है इस समय। जितना ज़्यादा आप बॉडी स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड रिलीज़ होने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट है थोड़ा सा वॉकिंग, लाइक ऐसा जो हम लोग वॉक करते हैं, ऐसा ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं और रनिंग भी नहीं, हल्का सा एक वॉक जो हम लोग काफ़ी इवनिंग में जाते हैं वॉक पे, तो ऐसा कुछ वॉक। एंड बहुत सारे खाना पड़ते हैं क्योंकि आपका शरीर में ऑलरेडी ब्लड निकल रहा है, आप वीक है, तो अगर आप खाना नहीं खाओगे तो उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा आपका पेन से फाइट करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
बहुत सारे खाना भी खाना पड़ेगा। इसके दौरान भी अगर आपका नहीं कम हो रहा है तो आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए और जो दवाई आपको प्रेस्क्राइब करेगा वही दवाई लीजिए, नॉट दैट पेन किलर जो मेडिसिन शॉप में आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पेन का जो मैनेजमेंट है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं आपका जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशंस आएंगे तब, तो हो सकता है आपको इनमें से कुछ भी मेथड से आपका पेन मैनेजमेंट हो सकता है। Ma'am, reusable pad. Reusable cloth pad is a sustainable option, right? So, can anybody tell me what is this made up of? Cotton, foam, and fiber. Okay. So, how do you dispose it of? Dustbin, right? So, how long does it take to decompose? 30 days. Yes, 30 days is right. Anyone else? So, the main constituent in your pad is plastic. 99% of it is made up of plastic. So, you are using plastic every month. Though it is not written in your packet. Not only plastic, there are many harmful chemicals on it. There are dioxin. There are chemicals which are used in tires, in automobiles, which are put here. This white color is whitewashed. This is also a chemical. The scent you get it from here, it's a deodorant, another chemical. So, the packaging, you will not find any of this in the packaging. Generally, a packaging of any company gives the content, what is there in their product. But you will not get in Whisper, in Stay Free, in Carefree, wherever it is, you will not get the contents. So it is plastic, basically. And somebody said 30 days. Somebody said 1,000 years. So it is 1,000 years, actually. One pad goes to landfill and it takes so many of years to decompose. So you can imagine how many pads are you throwing away every month? At least one packet? Minimum one packet? I think 2 packets people are using. People use generally 2 packets. So even if you are using 1 packet, you are throwing out 7 pads in the environment, which stays there till a period of 900,000 years. Because the plastic do not decompose. The plastic breaks down into microplastic. You know that? It breaks down into microplastic because of the UV rays of sun, and then it gets mixed in the soil, in the water, everywhere, and then it is eaten by the animals. So you can well imagine where it goes. If you throw it in the pond, the fish will eat it, and you are going to eat that fish. You can Google it. It's not my saying. You can Google it. You can find there are many researches on it. The chemicals, the harmful chemicals they are using here, that causes even cancer. So you can Google it out and find it out. There are many research done on this. Still, there is not any pakka sabut, ऐसा कुछ नहीं है, but there are. बहुत ज़्यादा नहीं, कौन यहाँ पे मैथ्स में अच्छा है? कितना हुआ? So, अगर आप इसके जगह में, you are spending this much of money in one packet which we don't use. We generally use 2 packets, जो 80 rupees का आता है. So, alternative solutions में ये आता है. This is called reusable cloth pad. This is called reusable cloth pad. जो आप एक पैड आप लोगे, आपको 3 साल चलेगा. And what is the ingredients here? इसमें प्योर कॉटन है भैया. आप लोग काट के भी देख सकते हो. इसमें एब्जॉर्बेंट है. ये जो मटेरियल है ये लीक प्रूफ है. लीक प्रूफ की वजह से आपका स्टेन बाहर नहीं आएगा. इसमें विंग्स भी है. सो ये वो पुराना कपड़ा नहीं है जो हम लोग की दादी लोग यूज़ करती थी. सो दीज आर द विंग्स. इसके साथ आप इसको यहाँ पे लगा के पहन सकते हैं. और इसके कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं. सो दिस इज़ वन ऑप्शन which you can use, and this option goes till 3 years. आप एक ले लो
और ये प्योर कपड़ा है, दिस इज प्योर फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, सो देर इज नो हार्मफुल केमिकल ऑन इट, और ये आपका सेहत के लिए अच्छा है. एंड अभी बहुत कंपनीज हो गई है जो ये बनाती है. देयर आर मेनी कंपनीज, वी आर ओनली वन ऑफ देम. आई एम नॉट टेलिंग आई एम द वन, वी आर ओनली वन ऑफ देम, बट आई एम वन ऑफ द कंपनीज इन कोलकाता, दैट्स फॉर श्योर. लेकिन अभी ये बहुत जगह में है. सो दिस इज द वे यू वेयर इट. ये आपका पीछे रहेगा और ऐसे आपका ये सामने रहेगा. तो इट गोज एज वेल एज फॉर 8 hours, 6 hours, ओवरनाइट पहनो, इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लो. दिस इज द स्लाइड विच आई जस्ट शोड, which shows the kind of toxicity the pad creates. This one. So these are the chemicals. There is pesticides even used there. There are undisclosed fragrance used for the smell. And this is the waste it is creating. You can have a look. These all are from the Google, from researched articles. You will also get it when you research on it. So it is actually very out in the open, and we as menstrual activists, we vouch for it and we tell everybody, at least our duty is to make you aware. Rest is your choice, your decision. It's after all your body. So there we saw the kind of issues women are facing regarding menstruation. There were myths, there were disposal issues. Disposal is a major issue in villages, in slums. यहाँ पे we have a dustbin. We just throw it, it's out of sight, out of mind, right? But village में कहाँ फेंकेगा? It's वो लोग उनके पास कोई option नहीं होता है. It's in a pond or it's in others' field. So that creates lots of problem in village communities. In slums, drain clogs हो जाते हैं because of these pads. So वहाँ पे options नहीं है. So and myths, बहुत myths है. So when we came back from the study, we decided to do something about it. And then we started taking sessions on sustainable menstruation. And from the session, we identified that there are many companies which are making reusable cloth pads, but those were very costly. So what we did, we trained certain poor ladies, certain under-resourced women from nearby communities who came from slums and rural villages. We trained them in making of reusable cloth pads. So they earn a livelihood out of it. So whatever products we have displayed out there are made by them. So your purchase directly goes to them. It's a part of Project Unnati, which I think was introduced before we came on the stage. So you can all have a look at the products behind the stage. We earnestly like to thank our respected chairman sir and respected Pragya ma'am, executive director of iLead, who we would also sincerely like to thank our honorable principal sir, vice principal ma'am and HOD sir for providing us with the great opportunity to conduct the seminar. We would like to show our token of gratitude to our respected teachers whose strong faith and encouragement continuously motivated us throughout this journey.